السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قبر کی پہلی رات کا ذکر سن کر ہی دل کیوں لرزنے لگتا ہے؟ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی پہلی رات سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ قبر کی پہلی رات جہاں انسان سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے، کوئی کاندھا نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف وحشت، صرف تنہائی۔ دل کانپنے لگتا ہے جب تصور کیا جائے، لیکن کیا واقعی ہم اس لمحے کے لیے تیار ہیں؟ کیا کوئی سہارا ہے جو اس اندھیری رات کو روشنی میں بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ساتھی ہے جو اس وحشت کو سکون میں بدل دے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، آنکھیں بند ہوں گی، سانس تھم جائے گی، اور وہ وقت آ جائے گا جس سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں قبر کی پہلی رات کی۔ وہ رات جب نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ باپ کا سہارا، نہ بھائی، نہ بہن، نہ کوئی دوست۔ سب آپ کو زمین میں اتار کر واپس لوٹ جائیں گے۔ آپ رہ جائیں گے صرف آپ اور آپ کا رب۔ ذرا سوچیں، وہ لمحہ جب قبر کی مٹی آپ کے ارد گرد ہوگی، اندھیرا ہوگا، ایک ایسا سکوت کہ سانسیں بھی سنائی دیں، اور پھر وہ سوال کہ اب تمہارا ساتھی کون ہے؟ علماء نے فرمایا کہ قبر کا اندھیرا اصل میں اعمال کا اندھیرا ہے، اور درود ان اندھیروں کو روشنی میں بدلنے والا سب سے طاقتور عمل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے قبر کی تنہائی میں سب سے بہترین ساتھی درود شریف کو پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود صرف ایک وظیفہ نہیں، بلکہ ایک ایسا نور ہے جو قبر کی خاموشی میں چراغ بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ اس کو دفنا کر واپس گئے۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کی وحشت سے کانپ رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا حال ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے سب چھوڑ گئے، میں اکیلا ہوں، قبر کی وحشت نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ کوئی سہارا چاہیے، کوئی روشنی چاہیے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ سوچیں، جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی یہ فرما رہے ہیں تو اس رات کی ہولناکی کا کیا عالم ہوگا؟ انسان کی زندگی میں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے وہی قبر کے کنارے تک چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ بیوی، بچے، والدین، دوست، سب چند لمحے کھڑے رہتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ قبر کا ڈھکن بند ہوتے ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ دنیا اور اس کے رشتے ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اندھیری زمین کے اندر وہ خاموشی چھا جاتی ہے جس میں کوئی انسانی آواز نہیں سنائی دیتی، صرف مٹی کی ٹھنڈک اور قبر کا سکوت باقی رہ جاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب فرشتے سوالات لے کر آتے ہیں اور انسان تنہا جواب دہ ہوتا ہے۔ قبر کا اندھیرا صرف مٹی کا اندھیرا نہیں، بلکہ اعمال کا اندھیرا ہے، اور یہی جگہ ہے جہاں انسان کو اپنے سب اعمال کا نتیجہ ملنے لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس وحشت میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس تنہائی میں انسیت کہاں سے ملے گی؟ اس قبر کے سکوت کو رحمت میں کون بدلے گا؟ یہاں سے آغاز ہوتا ہے درود شریف کی حقیقت کا، جو قبر کی تنہائی کو نور اور سکون میں بدل دیتا ہے۔ قبر کی وحشت اور اندھیروں کا ذکر سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہی درود قبر کی وحشت میں ہمارے لیے نور بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو،
तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भी भेजो। सोचें जरा, वो अमल जिसमें खुद अल्लाह शामिल हो, जिसमें लाखों करोड़ों फरिश्ते शामिल हों, वो अमल कैसा अजीम होगा। और वही अमल दुरूद शरीफ है। एक बुजुर्ग का वाकया है कि एक शख्स का इंतकाल हुआ। एक शागिर्द ने उसे ख्वाब में देखा तो उससे पूछा, कब्र में क्या हाल है? उसने कहा, जब सब मुझे छोड़ गए अंधेरा छा गया, वहशत ने दिल को जकड़ लिया, लेकिन अचानक एक नूर फैल गया। मैंने हैरान होकर पूछा, ये रोशनी कहां से आई? तो मुझे बताया गया, ये वो दुरूद है जो तुम दुनिया में पढ़ा करते थे। वही दुरूद आज तेरे लिए चिराग बन गया है। ये हकीकत कोई कहानी नहीं, बल्कि वो पैगाम है जिसकी जमानत खुद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। दुरूद वो सहारा है जो कब्र के सवालात में ताकत देता है, कब्र की अंधेरी रात में इंसियत देता है और वहशत को सुकून में बदल देता है। अगर आप गौर करें तो दुरूद दरअसल एक रूहानी साथी है। दुनिया में जब लोग छोड़ जाते हैं, दुरूद साथ रहता है। कब्र की वहशत में जब सब खामोश हो जाते हैं, दुरूद बोलता है। आखिरत की अकेलाहट में जब कोई सहारा नहीं होता, दुरूद हाथ थाम लेता है। यही वजह है कि कहा जाता है, दुरूद वो तोहफा है जिसे पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता। और यही से हमारी अगली बात शुरू होती है। दुरूद सिर्फ एक जिक्र नहीं, बल्कि खबर की तन्हाई में एक जीती जागती रोशनी है जो अंधेरों को मिटा देती है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ कर देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। ये मामूली बात नहीं। जरा सोचें, एक बार जबान से दुरूद निकले और बदले में 10 रहमतें नाजिल हों। ये रहमतें सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती, बल्कि खबर के अंधेरों में जाकर रोशनी में बदल जाती हैं। उलमा फरमाते हैं कि खबर की वहशत असल में आमाल की कमी की वजह से है, लेकिन जिस बंदे की जबान दुरूद से तर रहती है, उसके लिए खबर तंग नहीं रहती। दुरूद एक ऐसी खुशबू है जो कब्र की बंद फजा को मुअत्तर कर देती है। यही वजह है कि कहा जाता है, दुरूद कब्र की तन्हाई को जन्नत की इंसियत में बदल देता है। फरिश्तों का दुरूद भेजना भी इसी हकीकत की तरफ इशारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई दुरूद भेजता है, तो लाखों करोड़ों फरिश्ते उस दुरूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक लेकर जाते हैं और उस बंदे का नाम पेश करते हैं। सोचें जरा, कब्र की अंधेरी रात में जब फरिश्ते आपके नाम के साथ ये खुशबू लेकर जाते हैं, तो वो कब्र अंधेरी कैसे रह सकती है? और यही वो दर्जा है जिसके बाद हमें समझना होगा कि दुरूद सिर्फ एक जिक्र नहीं, बल्कि हमारी कब्र का नूर और आखिरत का सहारा है। कितना प्यारा तसव्वुर है। सोचें, जब आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, तो आपकी दुआ एक नूर में लिपट जाती है और सीधी अर्श तक पहुंचती है। अब जरा उसको कब्र की जरूरत से जोड़ें। दुनिया में हम हाजतें मांगते हैं, रोजी, सेहत, इज्जत, लेकिन कब्र में हमारी सबसे बड़ी हाजत होगी सुकून, रोशनी और मुआफी। और वही दुरूद जो दुनिया में हमारी दुआओं को कबूल कराता रहा, वही दुरूद कब्र में हमारे लिए रोशनी बनकर साथ खड़ा होगा। यानी दुनिया की हाजत भी दुरूद से पूरी होती है और कब्र की हाजत भी दुरूद से। ये वो राज है जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान की जबान से दुरूद का सिलसिला कभी खत्म ना हो। नाजरीन, हमने कब्र की वहशत की बात की, लेकिन जरा पलटकर आज के दौर पर भी नजर डालें। आज का इंसान बज़ाहिर रोशनियों में घिरा है, मगर दिल अंधेरों में डूबा हुआ है। दोस्तों की भीड़ है, मगर दिल तन्हा है। खुशियों की महफिलें हैं, लेकिन दिल में सुकून नहीं। आपने गौर किया, हम जितना ज्यादा दुनिया की तरफ भागते हैं, उतना ही दिल खाली होता जाता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि उनका दिल हमेशा बेसुकून रहता है, लेकिन जो दुरूद को अपना मामूल बना लेते हैं, वो कहते हैं कि दिल में अजीब सा इत्मीनान उतर आता है, जैसे टूटा हुआ दिल मरहम पा लेता है, जैसे जलती हुई रूह ठंडक महसूस करने लगती है।
एक सूफी बुजुर्ग ने फरमाया, दिल की बीमारी का इलाज दुनिया की दवाइयों में नहीं, ये तो सिर्फ जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठीक होता है। यानी दुरूद सिर्फ कब्र की रोशनी नहीं, ये दुनिया के दिल का सुकून भी है। जब दिल परेशान हो, जबान पर दुरूद ले आइए। जब गम दिल को काटने लगे, दुरूद पढ़ना शुरू कीजिए। जब तन्हाई में आंखें भर आएं, दुरूद को अपना सहारा बना लीजिए। वासिफ अली वासिफ ने भी कहा था, दिल की दुनिया को आबाद करना हो तो दुरूद की महफिल सजाओ, क्योंकि ये महफिल जमीन पर होकर भी आसमान से जुड़ती है। तो याद रखिए, दुरूद सिर्फ आखिरत का सहारा नहीं, बल्कि ये आज के दौर की तन्हाई और बेसुकूनी का भी इलाज है। दुरूद वो पुल है जो दिल को अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। नाजरीन, आइए अब चंद मजीद अहादीस सुने जिनमें दुरूद पाक की हकीकत और बरकत खुलकर सामने आती है। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 नेकियां लिख देता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है। एक और हदीस में है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दुरूद कयामत के दिन तुम्हारे लिए रोशनी होगा। सोचिए जरा, कब्र की अंधेरी रात, कयामत का हौलनाक दिन, और वहां वही दुरूद हमारे लिए नूर और निजात का जरिया होगा। अब एक हिकायत सुनिए। कहते हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ। किसी नेक इंसान ने ख्वाब में उसे देखा तो पूछा, क्या हाल है? उसने जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में नेकियां कम की थीं, खताएं ज्यादा थीं, लेकिन एक अमल ने मेरी कब्र को जन्नत के बाग जैसा बना दिया। पूछा गया, वो क्या अमल था? उसने कहा, मेरी आदत थी कि दिन में कई बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया करता था। जब मुझे कब्र में लिटाया गया तो अंधेरा छा गया, मगर वही दुरूद रोशनी बनकर मेरी कब्र को जगमगाने लगा। ऐसी ही एक और हिकायत है एक बुजुर्ग की, जिन्होंने फरमाया, मैंने एक कब्र खोलते देखी, उसमें रोशनी की लहरें थीं। लोगों ने कहा, यह उस बंदे का कमाल है जो जिंदगी में नबी पर कसरत से दुरूद भेजा करता था। कितनी अजीब हकीकत है। हम समझते हैं कि दुरूद सिर्फ अल्फाज हैं, मगर दरअसल ये अल्फाज नहीं, ये एक नूरानी साथी हैं जो कब्र में उतरते ही वहशत को दूर कर देते हैं। वासिफ अली वासिफ का एक कौल याद आता है, जिस जबान पर दुरूद जारी हो उसका दिल कभी बेचराग नहीं रहता। तो नाजरीन, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं, ये हकीकत है। दुरूद वो अमल है जो दुनिया में दिल को सुकून देता है, कब्र में रोशनी बनकर साथ देता है और कयामत के दिन निजात का सहारा बनता है। नाजरीन, हमने दुरूद की हकीकत सुनी, उसकी बरकतें जानी, उसकी रोशनी को कब्र में उतरते हुए महसूस किया। लेकिन अब सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में उसे कैसे आदत बनाएं? पहला तरीका यह है कि दिन का कोई एक वक्त मुकर्रर कर लीजिए, चाहे सुबह सवेरे उठकर, चाहे नमाज फजर के बाद, या रात को सोने से पहले। रोजाना कम से कम 100 मरतबा दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। दूसरा तरीका यह है कि अपने दिन के मामूलात में दुरूद को बुने, जैसे दफ्तर में काम करते हुए, रास्ते में चलते हुए, बाजार में खरीदारी करते हुए। जबान तो वैसे भी चलती रहती है, फिर क्यों ना उसको नूर से भर दिया जाए। तीसरा तरीका, नमाज के बाद। हर नमाज के बाद चंद लम्हे निकालें और दुरूद पढ़ें। यह दुआ की कबूलियत का दरवाजा भी खोलेगा और दिल को भी सुकून देगा। और सबसे हसीन अमल, वो दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सलातु इब्राहिमिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ये वो दुरूद है जो हमारी नमाज का हिस्सा है, और अगर हम उसे नमाज के बाद भी मामूल बना लें तो दिल को नूर से भर देगा। याद रखिए, दुरूद पढ़ना सिर्फ अल्फाज दोहराना नहीं,
ये एक रूहानी राब्ता है। नाजरीन, एक और हैरत अंगेज राज समझ लीजिए। हम सब दुआएं मांगते हैं, कोई रिस्क के लिए, कोई सेहत के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई दुश्मनों से हिफाजत के लिए। लेकिन कभी सोचा है कि अक्सर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक कि नबी पर दुरूद न पढ़ा जाए। यानी दुरूद एक ऐसी कुंजी है जो दुआ के दरवाजे को खोल देती है। अगर दुरूद के बगैर दुआ की जाए तो वो ऊपर नहीं जाती, जैसे बगैर डाक टिकट के खत कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। उलमा कहते हैं दुआ के शुरू में भी दुरूद पढ़ो और आखिर में भी, ताकि वो दुआ अल्लाह के हुजूर ऐसे पहुंचे जैसे एक खूबसूरत तोहफा, क्योंकि दुरूद की बरकत से दुआ रद्द नहीं की जाती।